पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतेह। अमृत अमर ना हो सकिया सिख पंथ दी दस तू शान की जे ना लड़ियो अजीत जुजार मांगू बाजा वाले दी दस संतान की ओही जित दे ने बाजी बिच दुनिया जेड़े जितन लई बाजियां हार देने उठ खालसा गुरा दे लाल तैनू बाजा बिच सरहंद दे मार दे। बच्चे तू इश्क कमाएगा जान दी बाजी लगाएगा रोशनी करेगा रोशन हो जाएगा। जा मेरे बच्चे रब रखा। पक्का साटे सिरा तो उतारियां सी जीना ने मैं पहला गेट उन्हां लताड़ दूंगा तुसी देखियो तमाशा गड्डी तोर दी हकारियां नु चाड़ दूंगा तुसी देखियो तमाशा तोर दी हकारियां नु चाड़ दूंगा तुसी देखियो तमाशा गड्डी तोर दी हकारियां नु चाड़ दूंगा तुसी देखियो तमाशा। ओ बावे लड्डू केड़ी खुशी दे है? ओहो अस्सलाम वालेकुम कॉमरेड सूरत अली जी। सत श्री अकाल वीर जी। ओ बड़े शगना दे लड्डू ने तरसीम चल पनाड़ी सानू दे दे। पर हाले तक तू दस्या नहीं ये लड्डू किस खुशी च ने? वीर जी कल सब नु पता चल जाएगा। हे दशमेश पिता अपना मेहर भरिया हाथ मेरे सिर ते रखी बल बख्शी कि आज मैं अपनी जिंदगी दे सब तो वड्डे इम्तिहान विच सफल हो सका। हे सरबंसतानी वरदान ते कि सच अते इंसाफ दे मार्ग ते चलदे होया मेरे कदम अडोल रहन। मरण कबूल जीवन की छड़ आस हो सबना की रेण का तो Hitler can match the might of British Empire while we keep our colonies like India intact.
May I take a look at your book, sir? Wartime checks. किताब च इंसाफ दा पैगाम है की लिखेगा डू योर ड्यूटी Oops, rather a heavy book, sir. ਭਾਰੀ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਇਬਾਰਤ ਹੈ Pardon, sir? burden of knowledge is never light my friend Oh, yes. Some sort of holy book, sir. ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਹਿ ਦੋ ਚਾਚਾ ਦੇ ਪੋਤਰੇ Eh? it is a Punjabi love story like Romeo Juliet Romeo and Juliet in Punjab, eh? yeah just like this Romeo Juliet Yes. Thank you, sir. thank you good day I shall now invite Sir Michael O'Dwyer, former Governor of the Punjab, to address the gathering. Sir Michael O'Dwyer. Thank you for inviting an old man to come and speak to this august gathering today. The old man standing before you today is that same officer who did not shy away from slaying 1,000 enemies in 10 minutes when it came to protecting the interests of the British Empire. Given the chance, I would not shy away from another Jallianwala Bagh of Amritsar today in Africa. no Sir Michael you will not get another chance Excuse me, ma'am. Relax. Relax. Nobody move. I've got him! I've got him! I've got him! Okay, You move, you're dead man. okay, you have caught me. Relax. Calm down. You are in the custody of the British police. Do you understand English? Yes. Anything you say from now will be used as evidence against you. It is no use. It's all over. It's there. You will be charged with murder. I know. मैं अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर चुका हूं ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਜੀਵਾਂ ਜਾਂ ਮਰਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ I am not afraid of death Who else was with you? To which group do you belong? I don't belong to any group मैं किसी भी गुट दा नहीं मैं कल्ला I am alone Till you tell us why you murdered Sir Michael O'Dwyer, we will not let you sleep. I killed him because he deserved it he deserved it I had grudge against him Okay, young man. Tell me who you really are, and I'll let you go. Sher Singh, Uday Singh, Bawa, Frank Brazil, Udham Singh. Who you really are? What's your real name? Ram Muhammad Singh Azad Damn it! How can you be a Ram, Muhammad, Azad Singh, all at the same time? Oh, this man is too clever. I think we should declare him mad and get rid of him fast. I know you people. मैं समझना ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਤਲ ਉਡਵਾਇਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਗਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਾਇਰ ਵੀ I know you people want to declare me mad ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਤਲੂਨ ਚੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ Take him away! Gentlemen, thank you for coming at such short notice. Mr. Churchill, Mr. Attlee. Mr. Churchill, Mr. Attlee. I'd like to make you gentlemen
मैं खुद आपको आज के अखबारों में छपी सनसनीखेज खबरों से वाकिफ कराना चाहता हूं। कल कैक्सन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक मीटिंग में गोलियां चलाई गईं, जिसमें सर माइकल ओडवायर की मौत हो गई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जेटलिन साहब, लॉर्ड लेमिंगटन और सर लुई डेन बुरी तरह से जख्मी हो गए। इस खूनी हमले का जिम्मेदार उधम सिंह नाम का एक हिंदुस्तानी है। मुझे यकीन है कि इस बुरे वक्त में आप मेरा साथ देंगे और माइकल ओडवायर की बेवा और परिवार को अपनी श्रद्धांजलि देंगे, उस आदमी की मौत के लिए जिसने बहुत नाजुक वक्तों में पंजाब को जीतकर बर्तानिया के कदमों में डाल दिया था। हम आपके साथ हैं प्रधानमंत्री जी। पर मिस्टर चैम्बरलिन, क्या यह सच नहीं कि माइकल ओडवायर ने बर्तानिया के लिए पंजाब जरूर जीता, पर आज पूरा हिंदुस्तान हार दिया? मुझे तो फिक्र है दुनिया जर्मनी और हिटलर के कहर से बचने के लिए अंग्रेजी सरकार का भरोसा कैसे कर पाएगी अब, जबकि हम अपने ही घर में, अपनी राजधानी में अपने ही लोगों की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। सरकार कैसे जिम्मेदार है ऐसे पागल की हरकतों के लिए जिसे अपना नाम तक नहीं मालूम और जिसे असल में पागल खाने में कैद होना चाहिए? मुझे तो लगता है हम सब एक ऐसे पागल खाने में कैद हैं जहां राज है पागलों का। पागल नहीं हूं मैं। 21 साल तक जलियांवाले बाग दियां गोलियां दी गूंज ने मैनू सौन नहीं दिता। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ करार करके मेरे मिशन से मेरे मकसद को कमजोर नहीं कर सकते। मिस्टर कृष्णा मेनन, ना सिर्फ इंग्लैंड में बल्कि कनाडा, अमेरिका में बसे हुए हिंदुस्तानी हमें चिट्ठियां लिख रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं कि शेर की मान में आकर शेर को ललकारने वाले इस हिंदुस्तानी सिंह को बचाना हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। सर, उधम सिंह के इस मुकदमे के लिए सुनाम में किसी ने अपनी जमीन बेच दी है, तो अमृतसर में किसी ने अपना मकान, और आयरलैंड से आयरिश वर्कर एसोसिएशन वालों ने तो अपने खून से लिखकर यह पोस्टर भेजा है। सर, ये देखिए। हुण उधम सिंह नूं बचाउणा तुहाडे हत्थ विच है कृष्णा मेनन साहब। पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, महात्मा गांधी और नेहरू आपके साथ है, तो फिर कैसे नहीं ये अंग्रेज मानेंगे आपकी बात? वीर जी, भाईजान, की हाल कर दिता है कमीनिया ने तेरा। वो इन्हां ने की करना है, ज्यादा तो ज्यादा मेरी जान ले लेंगे। मैं भुख हड़ताल कर दी है। इन्हां नूं कह दिता है मैनू अखबार, वारिस शादी हीर ते गुटका नहीं दोगे तो मैं भुखा रह के जान दे देंगा। तू असी तेरी जान बचाने लिए लगे हुए हैं ते तू भुख हड़ताल करके अपनी जान देने लिए उतरा होया। बुढ़ापे तक जिंदा रह के दूसरियां ते बोझ बनना, ऐसे जीवन दा की मजा है सूरत अली? मजा तो इस गल च कि आदमी जवानी च हसदियां खेड़दियां कुछ कर जाए ते टुर जाए। तू ही कहंदा सा ना कि असली जंग सत्ता बदलन विच नहीं, समाज बदलन विच है। ए लड़ाई बहुत लंबी है आजाद, इसे वास्ते तेरा जीना बहुत जरूरी है। छोटे वीर, तेनू पता है कि तेरी डिफेंस वास्ते असी अच्छे अच्छे वकील ले आ रहे हैं। वीके कृष्णा मेनन खुद तेरी पैरवी वास्ते तैयार हो गए ने। अच्छा, लेकिन वो मैनू किवें बचाणगे? मैं तो खुद बयान दिता है कि माइकल ओडवायर नू मैं मारिया। मिस्टर मेनन, अदालत विच ये साबित करनगे कि तू गोली जानबूझ के नहीं चलाई, तू पागल हो गया। वाह वाह कृष्णा मेनन साहब, वाह। वो यही ते अंग्रेज साबित करना चाहते ने कि मैं पागल हो गया। कोई फर्क नहीं वीर जी, कोई फर्क नहीं इन्हां अंग्रेजां च ते अपर क्लास दे हिंदुस्तानियां च, जेड़े इंग्लैंड आके बैरिस्टरियां पढ़दे ने, अंग्रेजां दी बोली बोलदे ने ते हिंदुस्तान च जाके साडी लीडरी करदे ने। आजाद, मैं समझदा
ਇਸੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਜੀਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ओहो छड्डो मेरी जान दी परवाह। मेरी मौत नाल कुड़माई हो गई है, बस विआह दी तारीख पक्की होने वाली है। जिन्ना पैसा तुसी मेरे मुकदमे ते ला रहे हो, वही पैसा तुसी हिंदुस्तान दे अवाम नूं मेरियां गल्लां पहुंचाण च खर्च करो। खैर छड्डो, बाहर की हो रहा है? अंग्रेज तां टोटली हिल गए ने। प्राइम मिनिस्टर चैंबरलेन ने इस्तीफा दे दिता है ते हुण चर्चिल आया अंग्रेजी राज दे डुबदे सूरज नूं बचाउण। चर्चिल हो या चैंबरलेन, ये सारे इक्को थाली दे चट्टे बट्टे ने। गोरियां दी काली हुकूमत बहुत ज्यादा। अच्छा, हिंदुस्तान दी की खबर है? रामगढ़ वाले कांग्रेस दे सैशन विच नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जदों तेरे नां दा जिक्र कीता, उधम सिंह जिंदाबाद, राम मोहम्मद सिंह आजाद जिंदाबाद दे नारियां नाल सारा आकाश गूंज उठ्या। आजाद। सुभाष बाबू भी कमाल दी शख्सियत ने। मैनू नहीं लगता ज्यादा दिन तक कांग्रेस च टिकणगे। अच्छा मैम, गांधी प्यारे देश के सितारे नू फुर्सत मिली है खबर सुनने दी? हाँ। की क्या? उन्होंने बहुत अफसोस जाहिर किया माइकल ओडवायर दी मौत ते। और उन्होंने मुबारकबाद पेश की है लेमिंगटन ते ज़ेटलैंड दे बचन दी। और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि किसी एक पागल दे कारण हिंदुस्तान दी राजनीति ते कोई असर ना आवे। वो महान आदमी ने हिंदुस्तान दे रहनुमा ने कुछ भी कह सकते हैं, पर मैं आज भी उन्होंने सलाम भेजना ते कोई अर्ज करना। गांधी प्यारे देश के सितारे हिंदुस्तान नू अंग्रेजां कोलों ते हिंदुस्तानियां नू गरीबी ते जहालत तो आजादी दवा ते मेरे जे बंदे नू भुल जा। असी ते गुरु दी एक पुकार सुन के इस राह उत्ते टुरे सां जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली कली मोरी आओ। Mr. Singh, get ready for the court. This court has been in session over this matter for days now. Mr. Udham Singh, you are charged with the murder of Sir Michael O'Dwyer. I give you a chance to state here why this court should not give you the penalty of death according to law. ऊधम सिंह, तुम्हारे ऊपर खून का इल्जाम है, तुम्हें अपनी सफाई देने का एक आखिरी मौका और दिया जाता है। थैंक्स। मैनू तर्जमा करने वाले दी लोड़ नहीं, मैनू अंग्रेजी आंदी है। आई नो इंग्लिश। तुसी जज साहब वास्ते तर्जुमा करने वाले दा इंतजाम करो, क्योंकि जद ए अपनी मादरी जबान च बोल सकते ने ते मैं भी अपनी मादरी जबान च ही बोलांगा। What is he saying? Let me explain. I'm saying I know मेरे सिर ते कत्ल दा इल्जाम है, मैं इस दा इकबाल कीता है ते फिर करदा हां, but I'm proud to say मैं जो कुछ भी कीता है अपने मुल्क नू आजाद कराने लई कीता है। Order! Order! I am not going to listen to a political speech. But you asked me if I had anything to say. हुण तुहानू सुनना ही पवेगा। I stand here to speak on behalf of 300 million people of India. मैं इत्थे उन्हां 3 लाख लोगां लई इंसाफ मंगन भी आया हां जिहड़े अज हिंदुस्तान दियां जेलां विच सड़ रहे ने। मैं उन्हां हजारां लोकां दी जिंदगी मंगन भी आया हां जिहड़े 1919 दी विसाखी वाले दिन अमृतसर विच त्योहार मनाण आए सन, मेला देखण आए सन। जलियांवाले बाग विच असला खत्म होने तक गोलियां चलाना, निहत्थे मासूम निर्दोष लोगां दा खून बहाना, की ओ कत्ल नहीं सी? मेरे ते कत्ल दा इल्जाम लगाने वाली ए अदालत मैनू दसेगी
कि किस सभ्यता, किस कानून, किस धर्म के मुताबिक ओ कत्लेआम नहीं सी। You are allowed to speak only about this case. आप सिर्फ इस केस के मुतालिक ही बोलिए। This is my case. My country is my case. ਜਦੋਂ ਮੁਨਸਿਫ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। I say you are exploiting us. You imperialists are sucking our blood. You are not helping your case, Mr. Udham Singh. I am not Udham Singh. My name is Ram Mohammed Singh Azad. ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, मगर हुन तुसी राम मोहम्मद सिंह आजाद नहीं बन सकते। याद रखो, मानस की जात सब है, एको पहचानबो। I am the spirit of united India that will stand always against every oppression. Mr. Singh, I will not hesitate to pass the death sentence upon you. ते तेरा की ख्याल है मैं तेरे कोलों लड्डुआं दी आस रखी बैठा सा? I am not afraid of death. Remember this. मैं मरांगा ते तुहानू हिंदुस्तान तो पहचान ले होर हजारा हिंदुस्तानी उठ खड़े होंगे। You dirty dogs. Oh my God. Order! Order! I must say here, I have nothing against the English people. मैं अंग्रेज किसाना ते मजदूरां दे खिलाफ नहीं। मेरी मुखालफत अंग्रेजा दी साम्राज्यवादी सरकार दे नाल है। I say down with British imperialism. Enough! I pronounce the accused guilty. To be hanged by the neck till dead. मैं खुश हां, मैनू अपने वतन लिए कुर्बान होने की इज्जत मिली है। इस गरीब मां प्यो दे अनाथ बेटे कोल अपने वतन नू अर्पण करन लई होर है ही की इस अदना जी जान दे सिवा। इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! Order! I order this case to be in camera. Nothing that he has said will be published in the press. तुसी दुनिया दे आंख कान बंद कर दियो, साड़ियां ज़बाना कट दियो, फिर भी सच नू तुसी दफन नहीं कर सकते अंग्रेजी कुत्तो। Remove the convict from the dock. Remove the convict from the dock. You dirty dogs! You dirty dogs! सच सुनन तो फटदी है तुहाडी। गल्लां कर दियो ह्यूमन राइट्स दियां ते सारी दुनिया विच गुलाम बनांदे हो। लोकां दा लहू पी पी के तुसी अपने आप नू सब भी कहंदे हो। तुसी ते जानवरां तो भी बदतर हो। You beast! You beast! इनकलाब! 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 Down with British imperialism! Down with British imperialism! भारत माता दी! भारत माता दी जय! भारत माता दी जय! किया है वीर जी? फांसी दी तारीख लगी कि नहीं? की गल है? सूरत अली, डॉक्टर भंडारी, चीमा, गुरबचन सब ठीक ने ना? सब ठीक ने।
फिर इन्हां अथरुआं दा सबब की है? बस एवें मैं तेरे लिए गुटका लेके आया। आखिर सरकार ने मैनू गुटका ले आने की इजाजत दे दी है। अले सतनाम श्री कबीर दास की उलटबासी वाणी से भी उल्टी है ये सरकार। जदों हुण मौत करीब आ गई थी, जिंदगी दी किताब दे रहे ने। जदों मैं कहना मैं भुखा रह के खुद अपनी जान दे दियांगा, ते मेरे नक विच रबड़ पा के ट्यूब नाल मेरे पेट विच खाना तुंदे ने। कई दिनां तो इंज ही करी जा रहे ने। ए हुण सरकार जिहड़ी है ना, उलट पुलट वाली सरकार, इहदा वक्त लंघ गया है। वीर जी देख लेना, अंग्रेजी राज दा कदे ना अस्त होने वाला सूरज बहुत जल्दी डूब जाएगा। तो मेरा सूरज तेनू पता है, ए सरकार ने फांसी रद्द करन दिया सारिया अपीलां ठुकरा दित्तियां। वीर जी तुसी ऐसा रो ना। अगर तुसी ऐसा रोगे तो मैनू बहुत तकलीफ होएगी। ए सरकार ने तो परसों तेनू ना ले जाने की इजाजत भी नहीं दी। फिर तो बहुत ही चंगा हो गया वीर जी, बहुत ही कमाल हो गया। फिर ते है ना कमीनियां नू मैनू ऐसे पेंटिन विला जेल दे विच दफनाना पवेगा, अमर शहीद मदन लाल टींगरा दे बिल्कुल नाल। वीर जी मैनू तो आने वाले दिन चंगे नजर आ रहे ने। कल जदों ये फांसी दे फंदे नाल मैनू लटकाणगे ना, ते ओ रस्सी मेरे कतल दी रस्सी नहीं होवेगी, बल्कि ओ रस्सी बागडोर होवेगी, जिन्नू खिंचदे आई हिंदुस्तान दे आसमान विच आजादी दा परचम लहरा उठेगा, ते सारा हिंदुस्तान इक्को आवाज च गाएगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद, आजादी जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेके ओट शहीद कुर्बानियां दी, गुंदिया कलम दी नोक दे नाल सेहरा, परया देश प्यार दे नाल लोको, दिता कौम कठाली विच टाल सेहरा, चुन के राजगुरु सुखदेव ते भगत सिंह नू, जड़िया नाल करतार दा लाल सेहरा, जिवें अर्श दी हिक विच चन्न सोवे, सजिया उदम दे सिर ते कमाल सेहरा, ओ सजिया उदम दे सिर ते कमाल सेहरा। वंदे